कृतिका, Yeah. पहले तो आप बोलो आप कौन सा तेल लगाते हो यार? ये बालों का राज क्या है? Yes, no, it's like highly sensitive information I Yeah. cannot share. हाँ. So the touch wood नजर ना लगे मेरे बालों को. I saw your page first, मैंने बोला ये क्या हेयर इन्फ्लुएंसर है? इनके बाल कौन से तेल कौन से लगाते हैं? People actually keep on asking me Yeah. कि you should try something in that advertisement and all, अच्छा क्योंकि जी. आपके बाल बहुत सुंदर है, बहुत Yeah. लंबे हैं. Yeah. But I'll always say all the credits goes to my husband. Okay. He is like, मतलब if I'll go to parlor also, he is like कितना काटा. He literally come with an inch tape, कितना मैं काट के देखता हूँ पहले, कटाया तो नहीं. So he's been the motivation pillar to me कि बाल नहीं कटाने. Otherwise, if I go back with my pictures, no, the old like I mean the young me at that time, मेरे बाल बहुत छोटे रहते थे. अच्छा. Because मुझे ये सब झंझट नहीं रखना था. It's like बहुत मुश्किल होती है धोने में, सुखाने में. Yeah, सुखाने में. And having this long hair is like it's a completely mess. But अब मैंने किया like काटा वाटा तो I'm sure I'll get a divorce from him. Yeah, so I'm just keeping it. So if you'll ask me what is the reason for the happy marriage? Long hair. Yeah, this. But do you oil your hair regularly? He does. I don't. अच्छा. Papa, it's you want Yeah. to grow me this Yeah. thing, Yeah. so you're gonna It's take care your of this. responsibility. Yeah, Yeah. I don't give a damn about it. Yeah, all the things you have to do. तो ये तो हफ्ता एक वीकेंड ही निकालना होगा ना? यार, कम से कम सच में. एक दिन तो सिर्फ ऐसा जस्ट ऑयलिंग एंड आई डोंट नो शैम्पूइंग वगैरह में. And the craziest thing, when I'll just call somebody for the hair spa and all, they're like, हाँ हो जाएगा. It's like 1,000, 1,200 में हो जाएगा. रुक जा, तूने मेरे बाल नहीं देखे. Seriously, फोटो भेज when I reach to that place and they'll say, okay मैम आप open करो, we will tell you कौन सा आपको करना है. और जैसे ही मैं बाल खोलती रही कि मैम 3,000 है ना, what is this? फोन पे तो आप कह रहे इतना, मैम तो we thought कि इतना होगा. So this is like kind of very expensive to me, like बहुत ज्यादा सारे मेरे खर्चे इसी में निकल जाते हैं. So I'm afraid of going for the hair spa. I'm afraid of going to use the shampoo. क्योंकि मेरे husband का shampoo इतना सा लगेगा, but you know मेरा वो कहाँ चला जाएगा. पूरा बॉटल खत्म हो गया. सच में. It's like very scary, but it just and this is one of the reason he fell in love with me. Yeah, he got attracted to this, not to this. Yeah. Like ये अच्छे बालों पे चेहरा कौन सा है? Yeah, hey, we met in train, so we were traveling together. Yeah. Okay, and tell then, me about that. Okay. So what happened? We have taken the train from Kanpur. I'm from Kanpur. He is from Kanpur. So unfortunately, his ticket got cancelled for one of the trains. So he got shifted to this train. So unfortunately, we met. So because of him, it's unfortunately कहाँ से मैं मिल गया इसको. काश उस दिन टिकट कटा नहीं होता. Seriously, he says the same thing. यार क्यों मैं चढ़ गया वो ट्रेन सच में. So we met. So मेरा वाला is like a middle berth, इसका वाला lower. So I had a habit कि मैं ना हमेशा बाल खोल के सोती हूँ because it's like इतना बड़ा जूड़ा बनाना फिर सोना, it's very painful. पूरे सर में दर्द होने लगता है. So मैंने पूरा टाई करके रखा था, but somehow मेरा क्लच खुल गया. Then all the hair like पूरा नीचे तक. So middle floor से नीचे तक, middle berth से नीचे berth तक भी आ रहे थे. तो he was very shy. He was about to tell me कि अरे मैडम बाल तो हटा लो, हटा सावन की घटा. Couldn't work out. So morning में इसने मुझे बोला पूरी रात बाल ऐसे लटक रहे थे. Seriously, can you imagine? Like he was very afraid. He couldn't tell me anything at that time. So मैंने बाल मतलब सुबह उसने मुझे बोला when we were about to reach Pune in the morning. So he told me कि भाई इतने लंबे बाल हैं आपके and all of these things. Then somehow he gathered some kind of strength and he asked me for my number because he was very afraid. He's like पूछो, literally he was shivering. है ना, आपका नंबर this and okay. मैंने कहा okay fine, just ले भाई नंबर ले यार. I am also having a crush on you भाई, मस्त लगा तू मेरे को, नंबर ले यार. आगे चली गई हमारी गाड़ी. So we have exchanged the number. Then I was waiting for his text कि भाई नंबर तो लिया तो उस बंदे ने हफ्ता भर हो गया, ना कोई कॉल, मतलब इतनी अच्छी लड़की मिल रही, ना कोई कॉल ना कोई कुछ. So I felt very irritated कि कैसा बंदा है. मतलब मैं किसी को नंबर देती भाई, वो तो घंटे भर में मैसेज वैसेज जैसे आने लगते थे ना, प्रोग्राम फिक्स हो गया होता. He couldn't even call. Then I saw the message, hey remember we met in train. मैंने कहा हाँ. What would I say कि साले तेरा तो वेट कर ही रही थी मैं, अभी तक तूने मैसेज नहीं करा मुझे. Then somehow we exchanged the number. We started meeting. Then we fell in love. And my family and his family both are very strict. So they are like typical Brahmin family. So we sure about it कि हमारा शादी में से कुछ problem नहीं होगा. But somehow it happened because Brahmins में भी there are a lot of categories. Of course, ये वाला Brahmin, वो वाला Brahmin. So somehow it got some trouble कि कैसे होगा कैसे नहीं. But at the end
अभी sorted out है, and now we are having a baby also. Yeah. So it's cool. It's a happy ending. Yeah. So now I'm not sure if he's happy, but I'm extremely happy. So this is how Yeah. we met, and this is how far we have came together. It's like 4.5 years. 4.5 years. Yep, Okay. yep. And since when have you started content creation? I think I was in Dubai for my work. So I was in real estate, by the Yeah. way. I'm having a quite a big experience in real estate. Acha. So I came back in 2016 or 17 somewhere. Acha. So there only. So the first brand I have worked with, it was Daniel Wellington. So at that time I was having like 23,000 followers. So they have approached me for a watch and a bracelet also. Okay. So then only I have started. So that was a barter one, of course, because yeah. earlier it was a barter kind of content This is creation. 2016. Yeah, 2016. So been a long time. Early at that days time. of influencing. Yeah, nobody was there at that time, Yeah, you know, and having this much of followers and all. Yeah. So what I used to do at that time, wherever I'm going here and there, I Yeah. used to post the videos. So people are like more like a travel blogger kind of Acha a ji, thing. So okay. though I have deleted all the videos now because it was so crazy. हाँ. So all the जैसे नहीं बच्चे लोग करते हैं ना, भाई guys यहाँ आ गई हूँ. आज मैं Hello इधर हूँ. guys. हाँ, hello guys. Hello friends, चाय पी लो. So these kind of videos are making. Hello friends, चाय पी लो. सच में यार. मतलब when I look and I have those videos in the archive, I will like कि okay, and someone like I feel like है ना अपने आप को motivation देना होता है कि रितिका कैसी थी तुम कहाँ आ गई हो, you know, you have to keep that standard maintained. Yeah. So मैं पहले देखती हूँ and my look was also ugly. यार 4 तरह के कलर करा रखे मैंने बालों में, मेकअप का आइडिया नहीं है, ड्रेसिंग सेंस का आइडिया नहीं है. So at that time I started and I don't know Daniel Wellington को मुझ में क्या दिखा था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया. I like okay आंदे. So I did that. उसके बाद I got a boost up. Yeah. So I got to know people because I have shifted here. I got married and all, so I had to shift from Dubai to here. Then I got some people. They are like बहुत मतलब मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग निकले वो जिन्होंने मुझे इस लाइन में आगे बढ़ाया. Okay. So I got to know about lot of the events here in Pune, like Thikana I did, then local I did. So local one of the first event of mine जिसमें मैंने बाहर जाके event किया था. So I got to know PRs here and then other influencer. So I got to know about the groups also that they are running in Pune, influencer group, ye group, wo group. Yeah. So I get all the events on group and people that I know. Yeah. So this is how I stepped in. And now, so 2016 says roughly 8 years. Yep. More than 8, in fact. How has influencing changed in the last 8 years? Well, I would say there's a big change because earlier there were only few and you would see at least a quality. But nowadays, you know how the TikTok has changed the game, right? Yeah. People are like, you have seen the kacha badam, है ना? आगे पीछे kacha badam. So now it's already changed. So अभी I believe product से ज़्यादा आप अपने आप को दिखा रहे हो. This is how it's became, है ना? Kind of a nudity I would say. बहुत सारे लोगों ने अब product को छोड़ के अलग चीज़ों में ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी. And now people are attracted to that. I mean, if you will see, I just had like quite a 1 lakh followers, ठीक है. But people who don't even know कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं, जस्ट कि उन्होंने शॉर्ट कपड़ों में ऐसे करके डांस स्टेप में करके बना दिया, सो प्रोडक्ट सेल हो रहा है. देयर आर लॉट ऑफ followers also. There you have seen lot of TikTokers, right? कुछ उनके आगे पीछे नहीं था. Now they're having like भाई 4 करोड़ के बंगलो. So though we all know कहाँ से आया पैसा, but still, so it has been changed. Yeah. अभी मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को उतना क्रेडिट मिलता है, दो वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर इट, बट नहीं. और फिर हमारी जो मार्केट में वैल्यू है लाइक फाइनेंशियली भी वो भी बहुत डाउन है. यू विल सी अ पर्सन, आप सिर्फ उसको एक चीज के एंडोर्स करने के लिए इतने सारे रुपए दे रहे हो. दो वी आर वर्किंग सो हार्ड, वी आर एक्चुअली मेकिंग द कंटेंट, वी आर गिविंग यू द डिलीवरीज एट टाइम, और वी आर एक्चुअली पुटिंग द एफर्ट्स, है ना. बिकॉज मेरे पास कोई प्रोडक्ट अगर आता है या इफ आई हैव टू गो समवेयर, आई रियली हैव टू मेक अ स्टोरी, आई हैव टू नरेट द स्टोरी, आई हैव टू गिव होल सिनेरियो कि कैसा है कैसे नहीं है ना. मैं गाइस यहाँ गई थी फिर ऐसा हुआ. बट आई हैव सीन पीपल जो पहले से आई डोंट नो कहाँ से आ गए हैं एकदम. दे आर नॉट इवन द ब्लॉगर, नॉट इवन द कंटेंट क्रिएटर, सो काइंड ऑफ अ बार डांसर टाइप ऑफ लोग वो एकदम आगे डांस करके कहीं भी चले जाते हैं. दे आस्क फॉर लॉट ऑफ मनी, पीपल आर हैप्पी टू गिव दैट मनी आल्सो. लाइक रिसेंटली आई हैव सीन अ गर्ल, वो किधर भी जाकर डांस करती है. यू माइट हैव सीन लाइक शी इज अ क्रेजी. शी अर्लियर व्हेन शी स्टार्टेड शी वाज लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. Okay, yeah. So like
इस तरीके के लोगों को भी लोगों ने आज कंटेंट क्रिएटर के साथ में जोड़ दिया है। हाँ। नो भाई, हम अलग हैं, हमको अपने साथ शामिल मत करिए, हम आप में से नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू, हु आर दीस टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स जो एकदम ही वाहियात है? यार इट कैन नॉट बी टॉप 3, लाइक यार ये टॉप 30 बता दो यार। बहुत सारे हैं गॉश, फिर भी टॉप 3 जिसको देख के लगता है कि अरे बाप। ओके, वन ऑफ द पर्सन, आई डोंट नो, बहुत सारी लड़कियों का फेवरेट होगा, सो पता नहीं कितने लोगों को बुरा लगेगा। आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट। दैट वन इज द फैजल, फैजू आर्मी। आई एम नॉट श्योर हिज नेम आल्सो, फैजू समथिंग लाइक या ही इज सो इरिटेटिंग यार, मतलब क्या है भाई। एंड whenever he opens his mouth, मैं बोलती हूँ भाई बोलना क्या चाहते हो आप, है ना, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बोल रहे हो, एंड पब्लिक को क्या चाहिए? नहीं बस ये भाई लोग ये व्हाट इज दिस, देन इसी के फॉलोड बाय MC Stang. Oh, he's not Stang, he's like Sting, like it's stinky even. कैसा है ये भाई लोग, जनता what is this, ये क्या है भाई, है ये लोग, ये क्या है? Then one of the girl I got to know, Ravi Roy, you know Ravi Roy, okay, है ना, guys मेरे पापा आज मर गए हैं, मेरे को मैं रील बना रही हूँ, हे भगवान, are you damn serious about your work, are you serious about anybody here? आपके पापा मर गए हैं, guys मैं रील बना रही हूँ यहाँ पर, पापा की लाश वो रखी है, आप इतना क्रेजी हो गए इन सब चीजों में। So I've seen these people, like, एक और बता दो। उसके बाद आई बिलीव वन ऑफ द गर्ल आई हैव टोल्ड यू, है ना, ये बंदी किधर भी, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव फाइल्ड अ केस ऑन हर, सो वो किधर भी निकल जाए, आई डोंट नो हर नेम, किधर भी जाती है, उसके बाद शी लाइक स्टार्ट पुशिंग पीपल, किधर जाके गिर जाती है, देन शी लाइक डांस कर रही, आई डोंट नो हर नेम बट आई हैव सीन हर वीडियोस। अच्छा, विल फाइंड। या आई मीन यू लुक एट हर, है ना, शी इज अ टिपिकल गाँव वाली, then you will see I've seen her videos with Sana Khan. These are the people who are actually inviting her just because she has crazy followers, right? And just because वो किसी के ऊपर स्पिट कर रही है, किसी को कुछ कर रही है, just गिर रही है, किसी को कुछ फेंक रही है, ट्रेन में जाके नाच रही है, ये कैसे कर सकते हैं? So that's why I'm telling you, these people are like absolutely nonsense to me. That's why I don't remember the name. But I've seen videos, कभी कभी फीड में आ जाता है, you know, it's like मेरा पूरा दिन बेकार जाता है। तो कैसे वीडियोस गंदे। Then one of the guys, पुनीत सुपरस्टार, नाली का पानी पी रहा है यार, वो नाली का पानी, गटर का पानी, गाय का गोबर खा रहा है वो आदमी। फॉलोवर्स है, पुनीत भाई ये देनो डॉली चाय वाला, ओह मतलब मेरा सर दर्द हो जाएगा ये मैंने बात करती रही तो। सच में these are the crazy people and look at the followings they have. Lot of people crazily following them. And these Dolly Chai wala, these people, this person has got the invitation from Dubai. अब वो दुबई के शेख लोगों के साथ उठता बैठता है। तो मुझे लगता है फिर हम लाइफ के सारे डिसीजंस को भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं वही बोलने वाली थी, मुझे लगता है बहुत पीछे रह गई यार। काश मैंने, मतलब लॉट ऑफ टाइम माय हस्बैंड सेड, तूने उस बार अगर टिकटॉक में कच्चा बादाम कर लिया होता तो हम ये गरीबी की जिंदगी नहीं जी रहे होते, ठीक है ना, अच्छा हो रहा होता, हमारे ही बंगलो रहते थे वहां पर, है ना। बट जस्ट कि यार बहुत करेज चाहिए उसके लिए, आई रियली थिंक दीस पीपल हैव लॉट ऑफ करेज कि भाई, और स्टुपिडिटी, काइंड ऑफ बोथ, काइंड ऑफ अ मिक्सचर, यस बिकॉज यू नो कहीं सड़क पे जाना, देन लोगों को पुश करना, उनको एम्बेरस फील कराना, देन यू आर बीइंग अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जस्ट बिकॉज यू आर डांसिंग लाइक क्रेजी पर्सन, किसी और को मारना, ये करना, वो करना, ही हा ये सब करना, सो हमारे बस की बात नहीं है। आई थिंक आई एम लिटरली वेरी हैप्पी, आप मुझे स्टैंडर्डली कोई चीज लेके आओ, मैं उसका प्रोडक्ट का रील बनाती हूँ, देन यू इनवाइट मी एंड गो देयर, आई विल मेक द रील, आई विल गिव यू द डिलीवरीज, है ना। आई थिंक दिस इज ओके फॉर मी एंड आई हैप्पी व्हाटएवर आई अर्न, आई एम सो हैप्पी विद दैट। मुझे नहीं चाहिए। Are you a full-time content creator? As of now, yes. Though I was working, I told you I was in real estate, so I was working, so I'm having pretty like 12 years of experience in all the real sales estate and marketing department. So I was in US, I was in Dubai for the business purpose only. But as of now, because of my baby, I had to leave the job. Then abhi to I'm full-time content creator. Yeah. So now, how has that changed the equation now? Because baby, you know, priorities. कभी ये नहीं सोचा कि चलो बच्चे के साथ अभी कंटेंट बनाते हैं, like a lot of people do, like women, new mothers who are content creators, like okay, now this is also content. जैसे उस औरत लड़की ने कर दिया कि वो मेरा बाप मर गया, she's like oh this is also content. Yeah, I guess मुझे अगर पर्सनली मिलती, like I would literally have slapped her कि वो कैसे कर सकते, आपकी
फादर की यहाँ पर डेथ हो गई है, डेड बॉडी रखी हुई है, और उसके बाद यू आर सेइंग कि मेरे डैड मर गया, यू नो इट्स बीइंग अ ट्रेंड नाउ, इट्स लिटरली बिकम ए ट्रेंड। लोग आजकल ये कर रहे हैं, कोई भी अगर कहीं डेथ हो जाती है, दे विल गो विद द वीडियोस कैमरा एंड ऑल, गाइस मेरा फ्रेंड मर गया, गाइस मेरे फ्रेंड के चाचा मर गए, गाइस ये हो गया। अरे उस टाइम पे तो मोबाइल छोड़ दो, है ना, एंड यू आर नॉट बीइंग अ सेलिब्रिटी आल्सो कि भाई आप सेलिब्रिटीज भी नहीं लेके जाते हैं फोन किसी की डेड बॉडी के पास में जाकर के, एंड यू आर डूइंग दैट, इट्स अ शेमफुल एक्ट, इट इज वेरी शेमफुल। सो बीइंग, मेरा बच्चा जब आया तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे कंटेंट बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है उससे मेरे बच्चे की प्राइवेसी हैम्पर होगी। सो यू विल सी माय इंस्टाग्राम आल्सो, इट्स बीइंग वेरी प्रोफेशनल। मैंने कोई भी चीज वहां पर मेरे बेटे के रिलेटेड नहीं डाला हुआ है, जस्ट वन पोस्ट व्हेन आई जस्ट गॉट अ डिलीवरी, तो दैट्स द ओनली थिंग आई हैव शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज नाउअडेज एंड आई एम बीइंग लाइक ओल्ड थिंकिंग वाली टाइप ऑफ लड़की, सो आई बिलीव यू नो कि बच्चों को या किसी भी चीज को व्हेन यू शोकेस लॉट ऑफ थिंग नो, तो नजर लग जाती है। सो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट थिंग, क्योंकि आई हैव सीन दीज थिंग्स इन माय रिलेशन आल्सो, बिकॉज मी एंड हमारा लव मैरिज हुआ, सो आई हैव सीन दीज थिंग्स, है ना। जब मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा, हाय उसी टाइम में लग जाती है, सो आई लाइक उसी टाइम मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, उसी टाइम में नजर लग जाती है मुझे। सो दैट्स व्हाई लाइक कि मैं यू नो जब वो 18 साल का होगा, जब मैं उसको मोबाइल दूंगी, आई हैव मेड हिज अकाउंट आल्सो, आई ऑलरेडी हैव सिक्योर्ड द यूजर नेम, सो आई थिंक जब वो बड़ा हो जाएगा, जब भी उसको लगेगा तो वो कर लेगा खुद। सो एज ऑफ नाउ आई एम नो वन कि उसकी प्राइवेसी हैम्पर मैं करूँ, यू नो, लोगों को मैं उस दिखाऊं ये करा मेरा बच्चा, वो करा वो करा, बुलशिट यार। मुझे मेरे काम से मतलब है, मैं काम करती हूँ, मुझे उसके पैसे मिलते हैं, सो आई थिंक आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। मैं अपने बच्चे को जानबूझ के बीच में लेके नहीं आऊंगी, and I'm scared of this thing. Being a mom, I'm scared of this thing. Your husband is not in content creation. He's not from that industry. No, मैंने बहुत जबरदस्ती की, but still no. Still He's no. like, मैंने देख लिया तुझे, मैं ये नहीं कर सकता. You know what he say? He's like, okay, मैं जॉब तो करता हूँ, बट मैं प्रोफेशनल कैमरा वाला हो गया, मैं कैमरामैन हो गया। अब मैं जहाँ भी जाती है ऐसे ऐसे यस मैम, फिर लाइक बेबी मैं ऐसे करूंगी तब लेना, बेबी मैं ऐसे करूंगी तब करना। सो ही इज टायर्ड ऑफ दिस थिंग, लाइक बहन किसी और को ले जा यार, तो मुझे बख्श दे। So it's happened, like he is very tired about this thing. But how does that affect the relationship? Because see, the nature of this profession is, ये profession कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो। True. आप होटल में खाना जा रहे हो, that is also content. आप I don't know, दिवाली पे बाहर जा रहे हो दोस्तों, everything can be content. Exactly. But like maybe in a traditional job there is a 9 to 5, there is a start, there is an end to it. Yeah. तो ये होता है कि यार अभी नहीं, यार अभी मत कर ये सब। To be very honest, हमारे रिलेशन में ऐसा नहीं है, because when we met, आपसे भी मैं बात करूंगा इसके बाद। when we met, so at that time he knew that I do that blogging stuff, है ना, ये पोस्ट करती, इसकी फोटोज भी डालती है, and she went to Dubai, she went to blah blah places, है ना। तो he knew it. He is being a very simple man. उसको जमाने से मतलब नहीं है. He is dedicated to his work. He is very dedicated. He is very passionate about his work. So he was kind of a shy boy, है ना, बहुत ही shy टाइप का. तो मैंने बताया जब मेरा नंबर लिया था वो काँप रहा था लिटरली ऐसे ऐसे ऐसे. So जब people got to know, like his people, his and people, they got to know कि यार भावेश ने बंदी पटाई है। सच में? पहले तो है पटाई कौन सी, फिर पहले कि ओके कुड बी नॉर्मल गर्ल, है ना, क्योंकि दे न्यू उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है ना, हिज फादर इज इन आर्मी, सो दे न्यू कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, सो लव मैरिज एंड लव अफेयर से तो हो ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। then they got to know कि भाई बंदी पटाई तो पटाई, ये रहा प्रोफाइल, लगे हाँ what is this, घर वालों की कुछ पड़ी है कि नहीं, बहुत मारेंगे, so you not knew it, so people couldn't even believe कि भाई ये इतना शायद इतना रिजर्व काइंड ऑफ बंदा ये इस बंदी के साथ जो इतनी आउटगोइंग है, इतनी बबली, इतनी क्रेजी है, उसके साथ भी हो सकता है। so at start only people like कि भाई देख सोच समझ ले, ऐसी लड़कियां सिर्फ काट के निकल जाती हैं, तुझे पता नहीं चलेगा, है ना, तेरी पूरी सैलरी ले जाएंगी। सो दे लिटरली स्टार्टेड हॉन्टिंग हिम अबाउट दिस थिंग। फिर लाइक यार तूने ना सिर्फ उसको इंस्टाग्राम में देखा है, तूने कभी उसको पर्सनली नहीं देखा,
जो तो इंस्टाग्राम में देखता है, शी इज नॉट लाइक दैट, है ना. इंस्टाग्राम में शी हैज टू डू बिकॉज दैट्स हर प्रोफेशन, शी इज डूइंग दैट, है ना. तो शी कैन नॉट इवन हाइड इट, एंड इफ शी कैन हाइड इट तो शी इज नॉट गोइंग टू बी अ ब्लॉगर एनीमोर. बट यू विल सी हर, वो पर्सनल लाइफ में ऐसी नहीं है. शी इज वेरी जॉली एंड बहुत ही अच्छा नेचर है उसका. सो पीपल कुडंट इवन बिलीव कि शक्ल से तो बहुत दुष्ट लग रही है, तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग. सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मीटिंग हिज फ्रेंड्स ऑल्सो. बट पता नहीं भगवान ने मेरी शक्ल इतनी गंदी दी ना, उनको फिर भी यकीन नहीं हुआ. सच में, दिया लाइक यार बातचीत तो अच्छी, बट कहीं ना कहीं मुझे दया कुछ तो गड़बड़ है. This happened. मैंने कहा अब मैं क्या करूं, है ना. मैंने कहा यार देखो, I do everything, है ना. मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है. That is very hard to believe, I don't know. मैं खाना बनाती हूँ, मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ. So आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई मेड्स एंड ऑल. मैं अकेले रहती थी, मैं घर में झाड़ू पोछा भी कर लेती थी, है मैं बर्तन भी खुद की धो लेती थी. मैं खाना बनाती हूँ, मेरी रोटियां गोल बनती हैं, अच्छे से फूलती भी है. ओह बाप, दैट इज अ फ्लेक्स. एग्जैक्टली, एकदम गोल, एकदम परफेक्ट साइज, और उसका फूलती भी है. सो आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ. पीपल आर स्टिल लाइक, यू नो, कैसा है. सो स्टार्टिंग में ही वाज लाइक, उसको ऐसा डबल थॉट तो नहीं आया कभी भी कि क्या है, कोई सेकंड थॉट्स वगैरह नहीं थे उसके. बट स्टिल समहाउ लगता है कि भाई क्या ये आगे बढ़ पाएगा रिश्ता, दैट काइंड ऑफ थॉट. बट समहाउ ही एडजस्टेड विद मी, यू नो. उसको लगा कि है हमारे. How was your conversation with your mother-in-law first? Like, ओह डोंट आस्क मी. अगर ये उन्होंने देख लिया ना, ओ गॉड, मुझे वो घर से निकाल देंगी सच में. हाय क्या याद दिला दिया. ओफ, बहुत ही. सी आई एम बीइंग अ ब्लंट पर्सन. आई एम जस्ट अ बोल्ड पर्सन. आई एम ब्लंट, में कुछ भी बोल देती हूँ, जो भी है. आई डोंट इवन सी कि भाई तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, क्या. अगर मेरे मन में है, आई एम गोना टेल इट टू यू, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है. इनकी मॉम से पहले मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलाना कैसे, दिमाग लगा रहे हैं, क्या करना है, कैसे मिलना है ना. क्योंकि घर पे गए भाई, तोड़ दिया जाएगा अच्छे से. पापा मेरी बंदी है, सेटिंग है मेरे, अच्छे तोड़े जाओगे, ठीक है. एंड इसके पापा सीधा हॉकी का है मेरी, धार. अरे बाप रे. मैंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो भी करना पड़ेगा. देन आई वाज इन रियल एस्टेट. तो इसने मुझे, क्योंकि दे वर लुकिंग फॉर अ फ्लैट इन पुणे, तो इसने मुझे मिलवाया कि चलो मिलते हैं. तो मेरी दोस्त है, वो रियल एस्टेट में है, तो शी कैन टेल यू कि कैसे आप खरीद सकते, क्या क्या इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स शी कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेल मैनर. सो आई लाइक ओके. बट इसके डैड, मतलब भाई बाप होता है, ठीक है. तो इसके डैड क्या, मतलब घर में लड़की को ही लेके आ गया है ना, कुछ तो चल रहा है. फिर उसके बाद नाम, बेटा नाम क्या है, ऐसा रितिका त्रिपाठी. यार ब्राह्मण, अब तो पक्का कुछ है, क्योंकि घर से इतना तो पता था कि मतलब ब्राह्मण होगा, देन वी विल गिव यू द परमिशन, अदरवाइज नो. देन ही हैड हिज डाउट्स कि कुछ तो भी चल रहा है. देन बात सिर्फ फ्लैट्स की नहीं हो रही है इधर, कुछ और भी बात चल रही है ना. तो उसके बाद वी, आई वाज अफ्रेड टू यार. मतलब घर में पापा एंड ऑल, मैंने कहा ये तो पिटता है ना, मेरी पिटाई हो जाए. देन आई विल लाइक चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग. फिर इसके डैड चले गए वापस यूपी में. देन मदर वाज ओनली हर. सो आई आस्क्ड हिम कि यू नो, इफ यू आर देयर, लेट्स कम, आई विल टॉक टू योर मदर इन दिस. एंड आई थिंक हमको डेट करते हुए 6 महीने हुए थे उस टाइम पे. देन इसकी मॉम से मिली मैं. देन मॉम, शी इज अफ्रेड ऑफ हिज डैड. एंड आई लाइक कि ठीक है, अभी क्या ही बोलूं मैं. देन मैंने बोल दिया, मैंने कहा आंटी जी साफ सीधी बात है, मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ, और भाई मेरे जो उसके साथ आगे शादी करनी है, उसके साथ बच्चे पैदा करना है, उसके साथ ही मर जाना है मैंने. ये मेरी साफ सीधी कहानी है. इसकी माँ तो एकदम ये हो गई कि कैसी लड़की है, कुछ भी बोल रही है. सो दिस इज हैपेंड. बट समहाउ आगे जाके when they got to know कि भाई ये लोग तो अलग होने वाले नहीं हैं, हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा, then they agreed and we got married. Okay. So this is how it went. Wow. Long story, but his version might be a little different. Yeah. Of course, I'm not going to tell you my flaws, like, but yeah, it's going to be different. There was a mistake actually. That's why she started like kind of hating me because I said something. So you're gonna hear it from him. I'm not going to tell you. मैं अपनी बेइज्जती खुद नहीं करने वाली हूँ. That's why. But yeah, it was all the good conversation with mom and dad, and the first meeting was also like good, I would say. Okay. So you obviously are an extrovert. Yep. You love to express your opinions. Yes. And you're very articulate. मतलब you're clear on what you want to express. True that. You think that is a necessary trait for a content creator today? I would say yes. Yeah. If you're being a shy person, I don't think you would be able to. You really have to be a person who explores, right?
आप जाते हो बाहर, उसके बाद एक्सप्लोर करते हो, उसके बाद यू रियली हैव टू टॉक टू पीपल बिकॉज यू आर गोइंग टू submit a review maybe, then you really have to ask people कि भाई कैसा था कैसा नहीं था and all of these things, right? Imagine एक हालत है, हाँ अच्छा था, हाँ आप नहीं आपको बोला फूड ब्लॉगर, खाना कैसा था, हाँ ठीक, हाँ नहीं खाना कैसा क्या पूछ रहे हो, what is this, ये करने के पैसे नहीं मिल रहे आपको, you really have to say something, so that's but then sad. you are more so on the food blogging part, right? Yes, I think this is better, like this is a good niche because food blogging to more expressive and it works for you. See, when you eat something na, you are वो सरदार जी actually कौन है, वो शेफ जो वो क्या उनका नाम याद नहीं आ रहा, yeah, I have seen his reels. हाँ Yeah, he है was कोई like तो है, you know ना कौन है, Yeah. ओह वो खाना तो खा ले, देख के ही एक्सप्रेशन हो रहा है क्या, I see. There are a lot of people. Oh, some of the people. अरे भाई बहुत ही मजा आ गया भाई. अरे I don't do this, Yeah. but हाँ, I like it was good. So मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा हाँ थोड़ा cool रहूँ उस चीज के लिए because I am also big foodie है ना. I'll taste a bite maybe, but I'm a big foodie and so my husband is. Yeah. So we both love to explore and view the places. We go to the places. हमें फर्क नहीं पड़ता भाई 5 star में जा रहे हैं. We really spare 5 stars and all of these stars. We go to the tapris. This is our favorite locations. है ना, वो डेट पे मुझे टपरी में लेके गया because I was that kind of person. मुझे कटिंग की चाय पीनी है ना, और मुझे वड़ा पाव खा लेना है. I'm okay with that. I'm that kind of person. So मेरे हिसाब से we really have to be expressive क्योंकि हमें बताना पड़ता है हम कहाँ आए हैं, क्या चीज हम खा रहे हैं, बिकॉज जब तक आप उस चीज को अच्छे से नहीं बता पाओगे तब तक पीपल विल गेट, दे आर नॉट गोइंग टू नो कि आप क्या खा रहे हो, क्या टेस्ट था भाई, अच्छा था कि नहीं, बिकॉज आप मालूम चला आप 1000-1200 की चीज भी खा रहे हो, एक्सप्रेशंस लाइक हाँ खा लिया, या नहीं होगा भाई. और आप ना 10 रुपए की चीज भी खाना, अरे भाई मजा आ गया, ओफो आग लगा दी भाई, अरे खतरनाक चीज, बंदा है वो भी बोल रहा है इतनी अच्छी है, तो अगला बंदा कहेगा भाई ये क्या खाया उसने, मैंने भी खाना है, ऐसी क्या आग लग रही है वहां पर, मैं भी खाऊंगा. So this happens. I mean, if you're gonna cut this line in your podcast, but I tell you a secret, I have been to the places, right, and खाना बहुत बेकार था, but I had to say यार मजा आ गया. कौन सी जगह थी, अरे बताओ यार, मैं नहीं जाऊंगा उधर. I was getting paid for that. I really had to say, and my husband is like, like मत कर, पैसे भी ले, चुप कर, निकल ले. I like खा चुपचाप. I like हाँ मेरा हो गया. And literally वहां से आने के बाद हमने बाहर खाना खाया है, जबकि one of the well known location in Pune it is, ठीक है, तो बहुत क्राउड भी रहता था. I'm not sure कैसे क्राउड जाता है वहाँ पर, but because I got paid for it, I had to say goodies about it. So I did my work. So that's fine. But then do you think थोड़ा सा conflict of interest है? Can say that, but money can buy everything. So You're a believer of I that? was sold. Yeah. At the right price, everything can be sold. Yes, exactly. Everyone has a price, right? So I was sold. I was sold good. Yeah. So I'm okay आप with that. generally you've reviewed restaurants PMC side, PCMC side कैसे? Entire Pune. Entire I've been Pune? to the places. Entire Pune, because काफी सारे, because right now I'm staying that part of area, east, mostly the east. So अभी वहाँ के मुझे ज्यादा अच्छे से मतलब easily जाना हो जाता है. And I think तो for example मान लीजिए आपके पास 1000 rupees है, 24 hours, PMC में मैं एक पूरा दिन कैसे उधर निकाल सकता हूँ खाने के लिए? मेरे हिसाब से ना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जैसा. 1000 में तो आई थिंक इफ यू गो विद माइनस, आपको 1000 में से भी बहुत सारे बच के घर में आ जाएंगे, बिकॉज आई एम अ पर्सन, आप अपने हिसाब से बोलो. हाँ, सो भाई मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ कह सकती हूँ, मैं बहुत ही कंजूस और बहुत ही गलीज टाइप के इंसान हूँ. Started with down to earth, कंजूस. So what happened? See, मैं देखूंगी मेरा पेट भरना चाहिए, खाने में स्वाद भी होना चाहिए, एंड आई एम मोर लाइक, मैंने ना इतना एक्सप्लोर किया हुआ है, मैंने इतना मसालेदार खाना खाया, बट मैं फिर भी जाऊंगी वहां जहाँ घर का खाना मिलता हो. सो आई विल ऑलवेज गो टू द महादेव डाइनिंग हॉल. भाई मस्त. ब्रेकफास्ट हम वहां से स्टार्ट करेंगे. We can go. Yeah, मैं ब्रेकफास्ट डिनर लंच पे वही एक ही जगह कर सकती हूँ, बट इफ यू रियली वांट टू गो फॉर सम ब्रेकफास्ट, सो आई डोंट हैव अ फेवरेट प्लेस, बट आप कहीं भी चल जाओ. मेरे हिसाब से मुझे दाबेली बहुत पसंद है. आई हैव 2 दाबेलीज, है ना, आई हैव 1 टी. सो मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट इज इनफ. सो आई थिंक
20 rupees, 40 rupees would be for your dabelis, then 10 rupees would be for आप your जगह का नाम भी बोलो ना कि लेट्स से ब्रेकफास्ट मैं इस जगह पे करूंगी, यहाँ पे मैं दाबेली लूंगी, तो यहाँ पे मेरा खर्च हो गया 100 रुपए, चलो मेरे पास 400 रुपए बचे, अभी मैं डिनर लंच के लिए यहाँ जाऊंगी, ये डिनर, ऐसा आप मतलब पीएमसी में 24 आवर्स एंड 1000 रुपीज है मेरे पास, मैं कैसे खर्च करूँ? आई सी, मैं ना प्रॉपर किसी जगह से नहीं खाती हूँ. आई गो टू वन ठेला, यू नो, सो देयर इज अ ठेला नियर टू गिरिराज ज्वेलर्स, उसके जस्ट नीचे ही है, तो दैट्स इन, वो बहुत ही अच्छा दाबेली बनाता है, लाइक बहुत ही. नाम आपको पता है? ऐसा कुछ नाम नहीं है उसका, आई एम नॉट श्योर, शायद सावरिया कुछ तो भी उसके ठेले में लिखा हुआ है, सो बेसिकली उसका ऐसा कुछ नाम नहीं है. सो गिरिराज ज्वेलर्स के नीचे ही रहता है वो. सो आई विल गो देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई थिंक 50 रुपीज आई टोल्ड यू, क्योंकि वो 20 रुपीज में चीज दाबेली देता है, बहुत यम होती है वो, बहुत यम होती है. और उसके बाद आप वहां से चाय ले सकते हो. देन आपने 50 रुपीज वहां स्पेंड किए, 2 दाबेली प्लस एक चाय. देन लंच में मुझे जब भूख लगेगी तो आई विल गो टू महादेव डाइनिंग हॉल. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लोकेशन, क्योंकि वहाँ घर का खाना मिलता है. आई थिंक 120 में आपको फुल थाली देते हैं वो, सो यू कैन हैव अ राजस्थानी थाली, यू कैन हैव अ महाराष्ट्रियन थाली, वट एवर यू वांट. तो एक पूरी थाली मिलती है वहाँ पर, एंड 120 रुपीज में इज गोइंग टू बी अनलिमिटेड थाली फॉर यू. सो इसके बाद आई डोंट थिंक कि मुझे ना डिनर करने की जरूरत रहती है, क्योंकि अनलिमिटेड थाली है. सो आई मेक श्योर कि मैं अच्छे से खा के जाऊँ जितना मैंने स्पेंड किया है. महादेव वाले बोल रहे यार इसको मत बुलाओ यार फूड ब्लॉगिंग के लिए. सच में यार, आई लाइक यार, लेकिन उसका खाना मतलब नीरज यू वोंट बिलीव, इतना टेस्टी है ना. मतलब अगर आप ऐसे हो कि आपको बहुत ज्यादा ब्रांड में नहीं जाना है, आपको बहुत ज्यादा यू नो आपको 5 स्टार में जाना है, भाई मैं तो उसके नीचे उतरता ही नहीं हूँ, मैं तो फुल एक लगा के खाऊंगा. मैं पर्सन में पंखा लगा के भी खा लूंगा, गर्मी है ना, मैं पसीना फेंक के खा लूंगा, खाना दे मेरे को बस, सिंपल. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बजट फ्रेंडली. 170 नाउ, 120 का थाली एंड 50 रुपीज. या लंच हो गया. या इन केस अभी फिर चाय नाश्ता डिनर, या फिर ना one of the shop that I know, it's a chain shop and they sell burgers and the rolls. Yeah, so I'll say it's a fried chicken destination. This is what's his name. Jai Ganam, okay. Yes, so one of the shop, this is a cloud kitchen actually, so they don't serve you, but you can take the deliveries out there. So me and my husband, we both go there because this is one of my favorite location. You'll get everything with the chicken wrap, chicken burger, chicken whatever, drumsticks and all, everything you'll get there. So this is one of my favorite location. उसका बहुत ही yummy रहता है, and I think this will cost you around 110 rupees. And that's a big roll you're gonna have, one wrap. So this is quite enough and sufficient for you if you're really hungry, because मेरे से एक भी पूरा नहीं खाया जाता है. And if you're really 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 hungry, then you could go for the jumbo pack they have. So that will cost you 150 around. 150. So this is quite sufficient. So 280 and अगर jumbo pack है तो 150. Okay. So 330. Yeah, that's it. 330 रुपए में आप खा लोगे पूरा. That's it. That's it. 500 रुपए भी जरूरत नहीं. This is something मैं डेली खा सकती हूँ. आई मीन यू वॉन्ट बिलीव, अभी मुझे, मैं हस्बैंड को ये बोल रही थी, मुझे लास्ट 2-3 दिन से ना वो चिकन खाने की क्रेविंग ही हो रही है, बट आई एम थिंकिंग कि मुझे वीगन हो जाना चाहिए. जितने वीडियोस देखती हूँ ना, कि वो तो बकवास है वीगन. कौन है? फिर आई थिंक लाइक यार, लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा था. एक बार खाइए, मैं लास्ट खा रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी. एवरी डे, एवरी टाइम. It's the last Every time. damn time I think about that. Hell, I think about those chicken crying. Thinks about those. क्या है, आपके बच्चे को खा लिया है ना, आपके बच्चे को खा लिया, आपको कैसा आप खाओ. लेकिन ठीक है, बट ये तो मर गए ना, ये खा लो. मैं नहीं खाऊंगी, तुमको कौन खाएगा? वो तो मर गए ना, दे आर ऑलरेडी कट एंड डर्ड. कौन खाएगा? तो फिर मैं खा लेती हूँ, बट जब फिर मैं उसका सोचती हूँ मैं वीगन बन जाऊँ, नहीं खाना चाहिए, फिर और मुर्गे मर जाते हैं, तो मुझे फिर से खाना पड़ता है. सो मतलब बहुत ही ट्रबलमेटिक सिचुएशन है ये, तो मुझे खाना ही पड़ जाता है. आई एम जस्ट हेल्पिंग देम टू clean the dead bodies, clear the dead bodies actually. So interesting way of looking at it. I mean मैं छोड़ दूंगी खाना जब कटने छूट जाएंगे. वाओ, क्या साइकिल है ना. खा रहे क्योंकि कट रहे, कटेंगे नहीं तो नहीं खाएंगे. मतलब भाई मेन सोर्स उनका ब्लॉक होना चाहिए. I'm just a consumer, you know, the person who is providing it, who is selling it, who is just cutting these. But then Ritika, supply demand ऐसे नहीं होता ना, और डिमांड है इसलिए तो सप्लाई है ना. ऐसा नहीं कि चलो मैंने काट दी, किसी को चाहिए क्या? Let's just a scenario जहाँ पर मैं उधर से जा रही हूँ, ठीक है, I'm just passing by, मैंने नहीं खरीदा, but don't you think उसका चिकन जो फ्रिज में रखे वेस्ट होंगे वो?
ट्रू है कि नहीं? मतलब then it is मसाला very- बनाया उसने, हाँ, मेयोनीज बनाया, yes, ये सब yes, वेस्ट हो जाएंगे वो. हाँ. आई रियली हैव टू कंज्यूम दैट Yeah. ताकि वो वेस्ट ना हो. तो सो मैं this is- नहीं भी निकलूंगी वहां से तब भी वो उसका वेस्ट हो जाएगा. हाँ. और वरना अदरवाइज कोई और खा तुम लेगा. जाओगे, ये हाँ, जाएगा, वो कोई ना कोई तो खाएगा ना. Yeah. तो कोई खाए से बेटर मैं ही खा लेती हूँ. हम्म, है कि नहीं? सो इट्स समथिंग, बट हाँ मैं छोड़ दूंगी. आई एम जस्ट अगली बार. हाँ मैं मतलब आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो हार्ड दैट आई रियली हैव टू क्विट दिस. हाँ. बट मुझे नहीं पता. आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट. हम्म. इट वाज ऑलवेज लाइक वो मंडे वो मंडे वो मंडे वो मंडे, हाँ. अगला मंडे इट्स ऑलवेज गोइंग लाइक दैट. व्रत करते हो क्या? नो, अब ये सेम से बोलते हैं अगला मंडे अगला न्यू ईयर हैपेंस. सो आई एम प्लानिंग करते आई एम ऑन इट एंड आई थिंक मैं हो भी जाऊंगी वीगन. अच्छा, क्यों? बट व्हाई दिस डिसीजन? आई हैव सीन द वीडियोस, अच्छा. crazy videos, and it was very painful. I mean, and डू यू थिंक इट्स जस्ट अ ट्रेंड? ये बकचोदी होती रहती है. हाँ, ओ होता वीगनिज्म है. ये होता है बट आई फील लाइक यू नो हालांकि खाते हो मुझे बहुत बुरा लगता है बट द टेस्ट इज सो यम, मैं वो छोड़ नहीं सकती हूँ. सो आई फील लाइक यू नो बहुत वो जो वीडियोस आते हैं ना जहाँ पर वो मुर्गे रो रहे होते हैं, है ना, ये कौन फिर से वो videos गाय में रो रही मुर्गे रो होती है. रहे? हाँ तेरा वीडियोस है और क्राइंग चिकन्स. हाँ, they're literally crying Okay. because I one of the influencer, I don't know his name, he made the video and उसमें क्या था कि his soul got exchanged with one मुर्गा, ठीक है. अच्छा, And now he's like अरे मैं पिंजरे में आ गया, पिंजरे में हो गया. Then he's like कि भाई मुझे मत काट, भाई मुझे मत काट, भाई मुझे मत काट. And then he जिसका मुर्गे का सोल जिस बंदे में आ गया था, he went to his home. Yeah. Then he's like पापा पापा. Then he was very happy. हाय मेरे बच्चे भी, हाय मेरी बीवी भी है, ये भी है, बोला. He was very happy. Okay. Then जो वो मुर्गा बन गया था, मुर्गा was very sad. Yeah. And he is always like कि भाई अब मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा. Then वो वापस से शॉप पे आया तो फिर वापस से उनकी सोल एक्सचेंज हो गई. अच्छा. Then he told everybody कि भाई भाई एक किलो देना. I was expecting the same. भाई बोल गया था, मैं पैक हुआ क्या? He's like कि यार कितना बुरा लगता है, आप मुर्गा बन गए होते अगर. And ये सारी वीडियोस आपको कब आएंगी? जब आप रात में सो रहे हो, आप एक बहुत ही सेंसिटिव मेंटल एरा में होते हो, बहुत ही सेंसिटिव. उस टाइम पे आप कोई अगर बोलते ना ए तो आप रोने लगोगे बिकॉज ऑफ नो रीजन. बस यू जस्ट सैड, यू आर ऑन द बेड एंड यू आर सैड, ठीक है. तो वो उस टाइम पे रील्स में आया था. तो आई फेल्ट, मतलब आई लिटिल फेल्ट कि भाई मैं मुर्गा हो जाती अगर तो मुझे ये बोलता इसको काटो. मैंने कहा भाई इट्स पेनफुल. अब खाने की बात अलग है बट आई बिलीव दैट इट्स वेरी पेनफुल, यू नो, करते हुए देखना एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो व्हेन आई गो, मतलब वी डोंट मेक एट होम बट कोई फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी कर लिया एंड ऑल, सो वी गो एंड बाय. सो आई हैव सीन तो वो कॉक कर रहे होते हैं. देन यू रियली लाइक गटा कट गया, वो गई मुंडी उसकी, ये क्या शरीर, देन कर इट्स वेरी ग्राफिक. पेनफुल टू सी. मैं नहीं देख सकती हूँ. मैं दूर खड़ी हो जाती हूँ बिकॉज मुझे आवाज भी सुनना बहुत ही लगता है. So, but I don't know why I'm not able to quit this. I am still not sure about it. It's just because of the taste maybe, and being a foodie, so I love the taste. So, but I'll leave it. All of these bad habits, I think. Yeah, because I'm tired of these things, you know. मुर्गे के बच्चे को अनाथ करके पापा मम्मी खा लेते हैं हम लोग. So these things are happening with me. So I think उसको छोड़ना पड़ेगा मुझे. But then what is the alternative? If you go vegan, plants also have life, right? अरे they don't scream, no. अच्छा, so criteria is it should not scream. हाँ, the blood shouldn't be there. अच्छा. है ना, they shouldn't be screaming like crazy. And the plants, they don't know कि भाई तेरा नंबर आ गया, अब तेरे को काटेंगे. We don't know that. No, but with these मुर्गास, they do know, है ना, कि भाई मेरे बाजू वाला कट गया. अच्छा शीला आंटी का लड़का कट गया, अबे साला अब तो मैं कटूंगा. अरे शर्मा जी का लड़का फर्स्ट आया था, भाई काट दिया उसने साले को. भाई वो देख टांग टंगी उसकी, वो छाती लेके गया अभी, भैया मेरे को बटर पीस देना, वो ले गया भाई. आई हैव सीन दिस. तो मुझे लगता है मैं शायद किसी What type of content do you consume generally? mostly in the food. अच्छा. But somehow because right now I've started this thing like fashion influencer and other I think travel also. Some of the places I will, but I think travel में मुझे इतना ज़्यादा engagement नहीं मिल रहा है. So I'm yeah. From a content creation perspective, आपको क्या लगता है सबसे high engagement categories कौन सी? Food. Food? Yeah, because me, you, people like us who are very lazy, है ना,
हम रात में यही देखते हैं, मतलब लिटरली वी गेट द ऑर्गेज़म जब हम देखते रहते हैं फूड, हाय क्या बना दिया यार, हाय कितना सही बना, भाई क्या चटनी डाली, भाई मजा आ गया, तो हमको ऑलरेडी मुंह में पानी आता है ना. So I've seen lot of people and इसके व्यूज भी बहुत हाई रहता है because me and you, right, give an example, me and you, अगर हमें कहीं पता चलेगा कि भाई वो ना एक जगह पे ऐसे दे रहा है, भाई आग लगा देता है बर्गर में, क्या बर्गर है भाई उसका, मतलब आग लगाता है बर्गर निकालता है पूरा, मी एंड यू विल गो, राइट. बट वही कहेंगे भाई वो एक अलग सी जगह है, वहां पर डायनासोर है, हाँ चले परस जाते हैं यार, इस संडे को टाइम नहीं मिला मुझे, है ना, लेकिन बर्गर खाने के लिए विल गो, हम नहीं जा पाएंगे, हम ऑर्डर करेंगे. सो द फूड इज समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी. And people are making reels on it. People are making lot of things. Do you think कि competition तो काफी बढ़ ही गया? Irrespective of that, this is a very high engagement. Like for example, my question, let me rephrase it. अगर आज मैं content creator बनना चाहता हूँ, ठीक है? Where should I start from? Like if there are 3 advices you can give me, where should I start from? I would say food. Because see, being a blogger, if you really want to start something, go for the food. And food is something आपको सब इसमें इन्वॉल्व रहता है, राइट. यू बिकॉज आई गेट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड लाइक पब्स एंड लाउंजेस आल्सो, दे आल्सो सर्व द फूड, राइट. सो इफ यू गोइंग टू द लाउंज आल्सो, मे बी यू आर गोइंग टू द पब आल्सो विद फ्रेंड्स, और आप सिर्फ खाली खड़े रह के डांस नहीं करने वाले. यू रियली नीड सम एनर्जी, लाइक यू गोना कंज्यूम समथिंग, गोना ईट. So for that also people call me. So recently I did one of the event for ballers. So they made me very sure you really have to showcase the dishes that you're gonna eat, you're gonna order. So I had to do that also. But baller is for dancing, pubbing, and alcohol. This is the only thing, right? But they made me very sure about it. So I had to. So I think food, agar aap lete ho, you can go to anywhere with that. Okay. I mean, one of the, I think in Mahabaleshwar there's a hotel. There's a very good hotel. There's a big hotel. I'm not sure about the name. Maybe Hyatt or something. I'm not sure. Okay. So there's a big hotel. Not Hyatt. One of the hotel is there. Okay. They asked me. So the main motto of them is like, you come here being an influencer. You showcase the property, and after that you really have to showcase the food that we are serving, right? So people should know कि भाई अगर हम जा रहे हैं, खाना अच्छा मिल रहा है. अच्छा. So, do you think the hotel really have to do something with the food? Normally we will see from the outside, no, it doesn't, right? आपको क्या मस्त लोकेशन चाहिए, पहाड़ दिखने चाहिए वहाँ पर, स्विमिंग पूल होना चाहिए कि वहाँ से कूदो सीधा पहाड़ में गिर जाओ, खाई में चले जाओ. This kind of location we always think about. But being a person, वो आपको पता नहीं है कि आपको खाना भी चाहिए. भाई स्विमिंग पूल में कूद के, पहाड़ में गिर के, झरने में खो के कुछ नहीं मिलेगा, खाना भी चाहिए. So इसके लिए I'm there. मैं बताऊंगी भाई खाना भी खाइयो, देख मैंने बर्गर खाया था वहां पर, तू भी खाइयो. सो दिस इज द थिंग. So I think whenever someone wants to start, they should start with the food blogging, because उसके लिए you really don't have to get an invitation. You don't have to showcase the 5-star, 6-star properties. You can go to any ठेला, any टपरी. भाई मैंने ये खाया, बहुत ही अच्छा है. That's it. This is something, how you gonna explain it, how you gonna showcase. Like छोटा सा बर्गर है, आप उसको कैसे दिखा रहे हो, कौन सा एंगल में दिखा रहे हो, है ना, किस तरीके का है, आपने क्या क्या बताया उसमें. इमली की चटनी है भाई उसमें, है ना, पता नहीं कौन कौन सी चटनियां हैं उसमें. सो दिस इज हाउ यू शोकेस इट. So food. Yeah, food. Absolutely. Anytime. Second, I think the fashion. I am also into it. So fashion is something, this is never going to get expired, right? You gonna always wear something. So I think fashion involves everything, that is your jewelry, and your clothes, and your shoes, a lot of things, है ना. उसके बाद third, I would say the makeup, because this is something is highly demandable in the market. People really love that. आजकल तो लड़कों ने भी शुरू कर दिया है भाई, है ना. तो मेरे चांसेस और बढ़ गए. I did for Lakme, L'Oreal, and I think other brands also. But the majorly I did for Lakme. Then Bioderma is one of the brand I did for. And Bella Vita is one of the brand I did for. So I think these are the 3 niche that we'll go for. Always, anytime. And you can start with anywhere. And for the makeup also, you really don't have to buy anything. Whatever you have, you can just showcase. You know, guys, मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ, मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, एंड या टाडा, गेट रेडी विद मी, है ना, व्हाटएवर, है ना, मे बी अ डेथ एनिवर्सरी और समथिंग लाइक दैट. पीपल आर लाइक, मेरे फूफा की 4th एनिवर्सरी है, आज मैं ये पहनने वाली हूँ. ओह गॉड, लिटरली आई रिमेंबर द थिंग. One of the girl, I'm not sure where she was from, and उसने एक रील डाला, guys get ready with me, एंड वो लिटरली एक अर्थी यात्रा में जा रही थी. कैन यू इमेजिन, वो डेड बॉडी, एंड शी वाज लाइक लाइव ऑन अ वीडियो, एंड लाइक गाइस ये देखो ये डेड बॉडी यहाँ से जा रही है.
सो लोग यहाँ तक भी तैयार होके जा रहे हैं. तो मतलब ये तो एथिक्स का भी और कॉमन सेंस. एग्जैक्टली. डू यू थिंक बिकॉज इतना हाई एंगेजमेंट, मनी, मतलब ये जो चीजें एसोसिएटेड है विद कंटेंट क्रिएशन, भाई बहुत पैसे है भाई, तू घुस जा, और अरे ब्रांड्स बस प्रोडक्ट्स भेजते रहेंगे, फ्री फूड, फ्री क्लोथ्स, आई डोंट नो, देयर इज सो मच आल्सो मिसकंसेप्शन. ऐसा नहीं है. ट्रू. यू थिंक कि अभी व्यूज के चक्कर में नाउ इट हैज बिकम भाई कुछ भी चलता है. हाँ, true. It is true. I've seen it. I mean, just you remember, just back then there was a trend जहाँ पर एक सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था. टंग. So that was one of the. So can you imagine, एक सेकंड का वीडियो भी वायरल हो सकता है. Just because there was a sexy girl, तो लोग एक सेकंड में खुश हो गए तो उसको देख के. So that has been viral. Okay. So literally आजकल व्यूज के चक्कर में और इसके चक्कर में कुछ भी. And I have seen, मतलब I don't mean to body shame anybody, but there are some of the people जो they're literally very fat. Yeah. Like वो एक सोफे में इतने अकेले बैठने वाले. I have seen. उन्होंने इतना सर्जरी करा रखा है कि वो इस सोफे में भी बहुत मुश्किल से बैठ पाएंगे. They are so obsessed कि you know, I don't give a damn. I am pretty. I know it. है ना, आप जल रहे हो, मुझसे जलो नहीं. I'm just concerned about you're gonna get a heart attack soon and you will be no more here, right? Yeah. No, she is being very pretty and people are like, you go girl, you go girl. You go to the gym, girl. Oh, seriously. You literally, you go girl, go to the gym. Go to the damn gym. Simple. लेकिन नहीं, people are like, you're so motivated. You're so... It's Moti who gained some weight. It's motivated. So it is actually motivated. But people are like, okay, don't let people body shame you. You're gorgeous. What is this? थोड़ा रियलिटी चेक चाहिए यार. So literally आजकल व्यूज के नाम पे, क्रेजीनेस के नाम पे, स्टूपिडिटी के नाम पे, नॉनसेंस के नाम पे कुछ भी बिक रहा है. बिक रहा है. And people are doing that. I've given you example, Puneet. Right, so people are doing. वो नाली का पानी पी के जब व्यूज बढ़ा सकता है यार. I mean, I think short term में ये लोग कर लेते, but 10 साल में when he will look back, maybe now he's a family man, responsibilities, maybe career भी वो शायद होगा नहीं होगा. True. Then when you look back to the things that you've done, which is forever. Yeah. On the net now. Yeah, if you have deleted your account, but people somebody has it. Yeah. So they're gonna regret it about it, of course, because when I have posted videos, these are like मेरे बचपन की photos थे. Like I used to be crazy, but the ugly looking girl I used to be, but I do regret about it. You know, शायद मुझे post नहीं करना चाहिए था, है ना? I have posted anything, है ना? आप घर पे है, पेड़ की, पौधे की, सबकी photos and all. So sometimes I think, you know, कभी नहीं करना चाहिए था, maybe I'll delete it, but वो इतनी सारी photos delete भी नहीं होता मेरे से, है ना? तो Facebook keeps on reminding me 10 years back, see how ugly you were, just look at yourself. So, I know I was. So it happens. So these people, I believe, whenever they're going to see themselves like 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, they're gonna see they shouldn't have done these things. Because it's really crazy. But some of the people, they are literally in a delusion. I don't think कि उनको कुछ फर्क पड़ता है. They'll keep on doing the same shit again and again till the time they go up. So it's gonna be there. And you know, people like me and you, we are making them famous. You know, because हमको ना कोई साफ सीधा सुथरा बंदा है, we are not going to see their reels, है ना? हम उसको motivate भी नहीं करेंगे. कोई बंदा है जो आपको कोडिंग सिखा रहा है, you will not be interested in that. ठीक है, maybe it's not your subject, maybe it's out of your interest. Okay, I understand. बट कोई आपको आपके देश के बारे में बता रहा है, नो स्टिल यू विल स्किप दैट. बट कोई बता देगा कि करीना ने मारा करिश्मा को थप्पड़. हाँ भाई, ये देख यार, ये देख. अरे व्हाट इज दिस भाई? करीना, करिश्मा, तुझे क्या लेना देना है भाई, है ना? लेकिन नहीं, तुझे देश दुनिया से छोड़ के करीना ने किसको क्या जड़ा है, तेरे को ये देखना है. So this is all because of you and me. We are giving them buzz. We are just highlighting them for no reason. आप खुद सोचो ना, कच्चा बादाम was one of the thing. And these comedians that are recently grown up, like, you know, एकदम से आप कितने pathetic jokes मारते हो. What do you think about Samay Raina? Oh God, he is one of the pathetic person I have ever seen. Like one of, मेरा मुंह गंदा हो रहा है उसका नाम लेने से. कैसे disgusting joke मारता है वो. I have seen his entire video and all. One of the lady, I think, Kapila, Krusha. इतने गंदे गंदे जोक्स आप उसके ऊपर मार रहे हो, है ना? जस्ट बिकॉज यू वांट सम व्यूज, राइट? एंड यू आर जस्ट लिटरली, आप वर्बली उसको इतना ज्यादा डिस्गस्ट फील करा रहे हो. दिस इज नॉट गुड.
यू नो आप एक पर्सन के आप पर्सनली कुछ मे बी शी कुड बी योर गुड फ्रेंड, आई डोंट नो, राइट, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, शी माइट बी योर फ्रेंड, बट आप उसको पब्लिकली ऐसे नीचा दिखा रहे हो, दिस इज नॉट गुड, एंड यू नो दिस इज अगेंस्ट द विमेन. आप कोई भी औरत को ले लो, आई डोंट थिंक किसी को भी इतना या ज्यादा ये रहेगा कि आप उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो. एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन शी रिसेंटली गॉट डिवोर्स्ड. आप फिर उसके बारे में बोल रहे हो. ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स थे उसके, मतलब आर यू रियली अ मैन? एंड देन आप उसके ऊपर जस्टिफिकेशन दे रहे. आई हैव सीन रिसेंट ऑफ द वीडियोस हैव, इट्स लाइक कि वो बोल रहा है आई हैव बीन बुलीड इन माय स्कूल, आई वाज लाइक वाइट बंदा, गोरा, छैला मुझे बोलते थे, चिकना बोलते थे. This is your thing, but you have no right to actually, you know, body shame. Maybe आप गंदी गंदी चीजें उसके बारे में बोलो. You shouldn't be just because of views. है ना? People like यार कितना बोल्ड है ना, क्या फाड़ के रख दी ना उसने. No, it's not good. It is not good. But just because of views. So because again, people like you and me, we are making them famous. हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं. हम भी देख रहे हैं यार क्या मस्त है ना, क्या बजाया ना उसने उसको, लाइव टीवी पे चमकाया भाई, बहुत सही था यार. वो जो क्रूशा का तो मुंह देखने लायक था. क्यों? अगर सेम चीज तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे घर में किसी के साथ हो, तो इज इट गुड? नो, इट्स नॉट. सो I literally don't like that person. Then again, some of the comedian who comes here and, you know, talks about religions, so that also I don't like. But this is your personal view, right? Keep it to yourself. Whatever you have no right to, you know, किसी भी other god का insult करना. Because we are India, we are very diverse, right? We have lot of people praying other gods. Like in Hindu also, we have so many gods, and you have your gods, you have your gods. I have no right. Same, you don't have any right to, you know, just because of you are doing comedy, you cannot do it, right? कॉमेडी के नाम पे कुछ भी चलता है ना, like you can say the most ऐसा absurd, outrageous thing. Exactly. But अच्छा कॉमेडी था ना, ठीक. Exactly. Can you imagine? मतलब sometimes I really feel, मतलब maybe it could be out of context, but I know I have seen people. आप देश को भी बेच रहे हो, अलग अलग लोगों को भी बेच रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, किसी के ऊपर भी बोल रहे हो. Just because you have right, you know, right to speak, you're just saying anything. ऐसा नहीं होता है. उसके बाद आप victim card खेलो. This shouldn't be there. I think आप इतने बड़े platform पे हो. There are a lot of followers who are following you. You know, people who get inspired. Like भाई उस बंदे ने ऐसे किया, बंदा कितना सही है. You should really make a note कि आप वैसी बातें बोलो जो actual में लोगों के ऊपर असर करे, right? अच्छा असर करे, ना कि बुरा. Because you have that position, right? You have made yourself to that far. You can literally motivate people. You can influence them. That's why you're an influencer. But YouTube के नाम पे, comedy के नाम पे, and I can talk, I can speak के नाम पे आप कुछ भी बोल रहे हैं. I have my rights. Right to expression सबको नहीं मिलना चाहिए equal quantity में. I strongly believe in that. Yes, आपको literally उसके लिए भी ना, I believe एक study होना चाहिए. You really have to. Government should actually implement a course or something जहाँ पर आप पास कर रहे हो, जितने नंबर से उतने आपको मिलेगा. Oh, that is a lovely way to put it. Literally. आपको बोलेंगे तमीज नहीं है, आप एक्चुअली में आप दिन में सिर्फ 10 चीजें बोल सकते हो. कैटेगरी में नहीं आते हो भाई, मुंह बंद रख ले फिर तो. लेकिन पीपल हुआ लाइक जो बोल सकते हैं, उनको लिटरली एक अगर उस स्टेज पे जा रहे हो, उस लेवल पे जा रहे हैं ना, तो आई थिंक उनको बोलना चाहिए एटलीस्ट सही चीजों के लिए. बट आई हैव सीन पीपल जिनको नहीं बोलना चाहिए, वो दिन भर बोलते हैं, उनके व्यूज आ रहे हैं, पीपल लाइक क्या बोला भाई, पता नहीं क्या. सो दे डू दैट. एंड जिनको बोलना चाहिए, बीइंग ऑन दैट पोस्ट, बीइंग ऑन दैट लेवल, दे डोंट से. तो लॉट ऑफ पीपल, यू नो, हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो उन्होंने नहीं बोला उसके बारे में. सो दिस हैपेंस. Let's play a small game. Like we are almost at the end of it. Yeah. I'll give you a sentence. You have to complete that sentence. Okay. Okay, and you don't have to think a lot about it. ठीक है? मेरे को censored जवाब मत देना, ठीक है? Okay. जो आ रहा है वो बता दो. Okay. Okay. The worst part of being a food blogger is. I have to taste every food wherever I'm get invited. So yeah, that's worst because some of the food I don't like. Okay. What is the worst thing that you had to promote? Food. The worst food you had to promote? Okay, wait. I was supposed to take the brand name or something. You can. No. You should. They're gonna ask the money back. वो हमने खर्चे कर दिए. मैम वो आपको पैसे दे दे रहा, वो तो कौन से पैसे? कौन से पैसे? बेइज्जती के थे क्या? वहाँ जाके बोल के आ गए. वो बेइज्जती के नहीं थे, शायद आपको कंफ्यूजन हो गया. वो प्रमोशन के लिए थे. Okay, no, all of the I think all the foods I have liked. My followers would be shocked to know that I can cook. ये मिसकंसेप्शन है कि ये, अरे यार इसको ना खाना बनाना
आता नहीं है या पसंद नहीं है इसलिए फूड ब्लॉगर बन गई? they are like, I mean, they were like, कैसे लोग हैं ना, वो लिटरली जाके कमेंट करते, मैम इतना सारा खा लेती हूँ अकेले। अच्छा तो बहुत खाती हो मैम? मैम कितनी लकी है, रोज पिज्जा खा रही हो। मैम इतना खा लेती हो क्या? या मैम बस फोटो मैम वो आप एक्चुअली में आपको खिलाते हैं या फिर फोटो लेके भगा देते हैं? वो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं यार। सो एज पर देम, मतलब आई बिलीव ऑलमोस्ट 5-6 महीने पहले पता नहीं कौन सी रील में किसी ने कमेंट किया था कि मैम घर पे तो कुछ बनाती नहीं, बाहर ही खाती हो। सो दे थिंक दैट आई डोंट कुक। अरे यार लंच करना है, अरे कौन सा रिव्यू कर रहे हैं? वो तो छोड़ो, मेरे खुद के इन-लॉज भी यही सोचते हैं कि मैं घर पे नहीं बनाती हूँ। हमेशा इनका स्टेटस लगता रहता है, कहीं यहाँ खाया वो खाया, ये दम बिरयानी खाई जा रही, ये खाया जा रहा है। तो लाइक हाँ मतलब सच में बोल रही घर पे भी खा लो यार। जस्ट कि आई लव कुकिंग, ठीक है, एंड बिकॉज ही लव्स ईटिंग, सो it makes me more happy to cook for him. So I love it. The weirdest DM you have got? Oh, I shouldn't be talking about that, please. Something that can be spoken about. Oh no, it shouldn't be. No. Well, I tell you, they know I'm married, right? And they know I have a baby also. But still, ma'am, एक रात का क्या prices है? So this is how I'm getting. And there are people, creeps, they're still sending me DMs. So उनको लगता है कि भाई ब्लॉगर है ना, फॉलोइंग्स है, तो आई थिंक शी माइट बी अवेलेबल। भाई शादी हो गई है, मेरा बच्चा भी है, तो कहाँ से तुझे लगा कि मैं अवेलेबल हो सकती हूँ? वो तो सारे डोर्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं ना। बट आई कंसिडर डीएम्स लाइक दैट, है ना, क्या रेट है ना। एंड सम ऑफ द पीपल आई थिंक मैंने उनके स्क्रीनशॉट लेके वायरल भी किए हैं। अच्छा। हाँ मैम मैंने नहीं किया था, आई एम सो सॉरी, वो तो फलाने ने मेरी आईडी हैक कर ली थी, फिर उसमें से हो गया था। किसको चला रहा है भाई? That happens. The one thing you secretly hate about your job? I think the deliveries, that I really have to deliver the things. So the delivery part is मैं खा के घर आ गई, I think this should be sufficient. बस मैं खा लिया यार, और क्या चाहिए? हाँ तो मुझे वीडियो भी चाहिए मेरे खाने का। तू क्लिप है। वॉइस ओवर रील भी दे, तुझे स्टोरीज भी डाल के दे, है ना मैम, वो ना 10 स्टोरी चाहिए, फिर प्रमोशन उसका तुझे हाईलाइट भी दूं, फिर वॉइस ओवर दूं, हाय मजा आ गया, बहुत बढ़िया खाना था, ओह भाई हो गया ना, मैंने खाया, तूने बुलाया, मैंने खाया, सिंपल, बस किताब बंद करने के नहीं। तो दे रियली आस्क फॉर दैट। Negotiates? You do your own negotiations कि deliverables क्या होना चाहिए ये सब? Well yeah, they asked me for the one reel and one post the prices. So I tell them the prices, then they negotiate with that. If it is okay with them, then I'll go with that. Otherwise, you know, तू तेरा देख ली भाई, मैं तो इतना ही है। So this is how it works. Okay. The worst advice that you've received from another content creator? I think they told me to one of the person, he has a good following also and he is doing all the modeling and all. He asked me, भाई तेरे को famous होना है ना, तो तू ना remix शुरू कर दे। Remix? भाई मैं क्यों करूँ, वो नाच रहा है उसके साथ मैं क्यों नाचूं? I couldn't do it, right? So this is one of the feature that I've never used, remixing with others. So yeah, this is how I got the advice from him. So मैंने कहा भाई तू ही नाच ले उसकी रील पे, मैंने नहीं नाचना है। So this is how. So अब उसके बाद people are like, you know, dancing videos बहुत चलता है, you should do it. So I never did it, the dancing thing. Though I have got something like जिंगल पे आपको स्टेप करके दिखाना है, you know, I will be paying you like 25-30,000 just for the jingle 3 minute का। भाई मेरे से नहीं हिला जाएगा, है ना, मैं भाई फूडी हूँ, मैं लेजी हूँ, ठीक है, you do it, I am not going to do it। तो कि मैम आपको तुरंत ऑन स्पॉट पेमेंट या फिर आप एडवांस ले लो, so like 30,000 they're big amount, so I never did that। Then the promotion is like Rummies वगैरह ये promotion that also I did, the games वगैरह ये promotion that I never did। आते हैं ऐसे? Yes। I think ये betting apps का तो बहुत आता होगा। हाँ, फिर जैकलिन के साथ मैं भी बाजू में चक्की पीस रहा था, नहीं भाई नहीं मांगता मेरे को। They pay good actually and they spot out these people जैसे कि मैं, so they know कि How do they reach out to somebody like you? DM वही? Yeah, DM and then I have given my email address also, so they pop into the email also कि ऐसा ऐसा, if they are a very good company they're gonna pop up in my email with a big proposal like Bioderma was there, the Lakme was there, ठीक है, Daniel Wellington was there, so these are the people they। And the छोटे company है, hi, hello, you're looking gorgeous, we have this bag, will you sell? I'll give you 20,000, sell। Spelling wrong। Happens। There are a lot of, it's a big sea, it's an ocean actually, you can, आप कुछ भी बेच सकते हो बस। I think we are almost at the end of our conversation। बहुत मजा आ रहा है। Yes।
आप बताओ, just if there are top 3 advices that you would like to give to a content creator today, वो क्या होंगे? I think because your support, like the back end support, Yeah. is a huge thing. It is. Right. It is. तो अगर maybe, and obviously because married and a kid, Yeah. that itself comes with so much responsibilities. It does. And फिर उसके ऊपर ये. Yep. I believe first of all, you really, if you really want to be in it, then you have to be in it, right? आप Half-hearted नहीं हो छोड़ सकता. दो, नहीं हो सकता भाई. आपने कहीं जाना है, then आपको फिर उसके stories and lot of things. You really have to cover the entire area, entire food, entire restaurants. You really have to cover it. You really have to get some time out for it. So I think time होना जरूरी है, then patience होना जरूरी है. You cannot just keep on digging कि भाई मेरे पैसे कब आ रहे हैं, मेरे पैसे. तो I mean there are still people, like I'll tell you, Lakme, they have given me my money, I think 45 days के बाद. So it happens. Yeah. They have their policies Yeah. and their things. So I think you really have to follow if you really want to grow. है ना? You're working with some brands, so you really Yeah. have to go with their मेरे following. पैसे दे. हाँ, ऐसा नहीं फोन कर कर दो. सकते. हाँ भाई मैंने पोस्ट डाला, पैसे देना मेरे. It doesn't matter. अभी भी होता है कोई 7-7 दिन पे पेमेंट्स होल्ड Yeah, रखता है yeah, आपकी. So it yeah. happens. So I think patience बहुत जरूरी है. Then you really have to be टाइम आपको निकालना चाहिए. Then I think you really have to be outspoken. आप ऑनेस्टली रिव्यू दो. आपको जो पसंद है ठीक है. somehow I believe कि आप 1-2 लाइन इधर उधर कर सकते हो, बट यू नो बिकॉज मी गेटिंग पेड, मुझे कोई अगर पैसे दे रहा है तो ऑनेस्टली मैं भाई उसका पैसा ले डूबने के लिए तो नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, है ना. सो आई विल गिव द पॉजिटिव रिव्यूज ओनली बिकॉज दिस इज माई जॉब. ही इज पेइंग मी, सो आई एम नॉट सपोज टू से नॉनसेंस थिंग्स अबाउट द ब्रांड. ठीक है, आप कहीं भी जाओगे कहीं ना कुछ खामियां, कहीं ना कुछ अच्छाइयाँ रहेगी. सो आप खामियों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ देखो. सो दिस इज हाउ आई वर्क. सो आई थिंक money, time is there, then outspoken is there, then patience is there. So I think these are being the 3 pillars for me. Okay. Cool. Thank you so much for coming over. Ritika. Thank you for I think inviting me. we should go for a food review. Yeah. पहले तो TM हो जाते हैं यार. लेकिन लास्ट टाइम मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, इस बार थोड़ा मैं सही बोल And दिया. I'm sure your lines cut होने वाली हो कि I should be getting the review from them, है ना. मैम वो आप बेइज्जती करा के आए हो क्या? हाँ मैम, उसके पैसे दे दो. लोग तो आए. वापस करो. आधे पैसे में नीरज से भी लेने वाला हूँ. उसने मुंह खुलवाया आपका. This was fun actually, yeah. Lovely, thank you so much. Thank you so much. Okay, Thank चलो, you. चलो सागर कट. Okay.